الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی. قدر نبی دا ایک ہی جاننا دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. دل نبی کی یاد سے پر نور ہو گیا. اس شخص کی دعا اللہ کے حضور مقبول ہو گئی. جس نے بھی دعاؤں میں نبی کی محبت کا صدقہ مانگ لیا.
دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا۔ قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اسہاں میٹھے مدنی دے تے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سیواں، ابو بکر عمر عثمان و علی تے ساڑے حامی چار یار تھی سیواں، تے ہوسی کار دی گرمی تھوڑی معاشر دے تے ادو جلوے سرکار تھی سیواں، تابش جی دیاں سناتاں پڑھ دے ہاں، اندے لب ہل سیواں ساڑے بیڑے پار تھی سیواں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تمام حمد و ثنائیں اس مالک لم یزل کے لیے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے وسیلے سے جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور دعا کرتے ہیں کریم خدا کی پاک بارگاہ میں اللہ جل جلالہ آج جمعۃ المبارک کے عظیم دن کے صدقے سے عظیم دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان ایمان والوں کو شفا عطا فرمائے جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اور آج عظیم البرکت دن کے صدقے کریم اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور کریم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک آج جمعۃ المبارک کی برکت سے قرضداروں کو قرضے سے خلاصیاں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن جو ہے، اور اس میں جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خواب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اب اس میں بیان ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کیا، اور ان کے شہزادے، ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے، ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی کیسے۔ اب ہمارا خواب وہ شیطانی ہو سکتا ہے
वसवसों वाला हो सकता है, ख्यालात के ऊपर मबनी हो सकता है, लेकिन जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब होते हैं वो ख्वाब ज़ाहिरन जो ख्वाब है वो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की अता से वही होती है। उनके ख्वाब सच्चे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की वही होती है वो ख्वाबों के जरिए। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पाक बारगाह में दुआएं मांग मांग कर बेटा हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने 90 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया। अब 90 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा मिलता है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे उन्स रखते हैं, उन्हें चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, उंगली पकड़ पकड़ कर उसे चलना सिखाते हैं, अपने साथ साथ उसे चलाते हैं और उसकी लड़खड़ाती हुई जबान के साथ उसे बोलना सिखाते हैं। अल्लाहु अकबर। और कभी उसे अपनी छाती पर लिटाते हैं, कभी उसे अपने कंधों पर बिठाते हैं, तो कभी उसके रुखसार का बोसा लेते हैं। जब बाप का बेटा, जब बाप की औलाद जब बाप के सीने पर खेलती है तो बाप को सुकून महसूस होता है, वो सुकून हासिल करता है, वो सारे दिन की थकन को भूल जाता है। अल्लाह अकबर। और जो औलाद मिली भी लेट हो, मिली भी देर से हो, अल्लाह की पाक बारगाह से दुआएं मांग मांग कर मिली हो, अल्लाह अकबर, उसकी मोहब्बत कितनी आला होती है, उसका प्यार कितना आला होता है। पर अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान भी बड़े लेता है, अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान भी बड़े लेता है। फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब 90 साल की उम्र के बाद अल्लाह ने शहजादा अता फरमाया, दुआएं मांग मांग कर जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस अपने इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमाया और फरजंद अता फरमाया। इब्राहीम प्यार करते हैं, इब्राहीम उल्फत रखते हैं। अल्लाह फरमाता है, इब्राहीम अब तेरे पर इम्तिहान है। अल्लाह क्या इम्तिहान है? फरमाया जो तुझे मैंने बेटा अता किया है ना, जिससे तू प्यार करता है ना, जिसे तू उंगली के साथ पकड़कर जिसे चलना सिखा रहा है ना, जिसे अपनी छाती पर लिटाता है ना, जिसे तू चलना सिखा रहा है, जिसे बोलना सिखा रहा है, जिसे अपने हाथों के साथ छोटे छोटे लुकमे खिला रहा है, जिसे अपने हाथों के साथ पानी पिला रहा है, और जिसे तो अपने जो है वो रुखसार के साथ उसका रुखसार मिला रहा है ना, ऐ इब्राहीम अब तेरे पर इम्तिहान है। मैं खुदा की मोहब्बत में इस अपने बेटे को अपने से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से इसे कट कर फला जगह पर रेगिस्तान में, जहां पर खाने को कुछ नहीं है, जहां पर पीने को कुछ नहीं है, जहां पर साया नहीं है, जहां पर मकान नहीं है, जहां पर आबादी नहीं है, फरमाया उस जगह पर छोड़ा। मैं खुदा कह रहा हूं, ये मैं खुदा की मोहब्बत है। मैं खुदा की मोहब्बत का दावा यही है जिससे तू मोहब्बत कर रहा है, उस मोहब्बत को मैं खुदा की मोहब्बत पर कुर्बान तो करके दिखाना। वो प्यारा बेटा अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस अपने नन्हे से शहजादे हजरत इस्माइल को, जिन्हें दुआएं मांग मांग कर लिया है, जिन्हें अल्लाह की पाक बारगाह में रो रो कर दुआएं मांग मांग कर लिया है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी अहलिया को, अपनी जोजा को, आप फरमाते हैं, ऐ हाजरा, आए हाजरा, मैंने तेरे से बात करती हैं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ऐ मेरे सरताज क्यों नहीं, करिए, क्या कहना चाहते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये अर्ज गुजार होती है, ऐ मेरे सरताज कहिए तो सही। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं, ऐ हाजरा तैयारी कर ले, सामान बांध ले और अपने इस शहजादे को
अपने इस बेटे को, हमारे इस लाल को, हमारे इस दिल के करार को साथ ले ले। फरमाया ठीक है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अनहा ने कुछ खाने का, कुछ पीने का, यानी कि कुछ चंद खजूरें और कुछ पानी का कोई मुश्किला लिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इनके ऊंट पर सवार हुई और चल पड़े। हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेते हैं और उस जगह पर जहां पर कोई आबादी नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है, आज वहां पर खैमे लग रहे हैं। आज वहां पर मैदान अरफात में आज लोग जो है वहां पर बैठेंगे। आज वो जगह सजाई जाएगी। आज उस जगह पर जो है वो सफेद लिबास में मबलूस इंसान वहां पर अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, खुले आसमान के नीचे अल्लाह को पुकारेंगे। फरमाया वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और अपने शहजादे हजरत इस्माइल को छोड़कर जब वापस होने लगते हैं, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं, ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरी इज्जत के वारिस, ऐ मेरे घर के रखवाले, जरा बताइए तो सही ना, हमें यहाँ पर किस लिए छोड़कर जा रहे हैं, किस वजह से छोड़कर जा रहे हैं? कोई तन्हाई की वजह से या कि कोई नाराजगी की वजह से छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल पर, वो कहते हैं ना, वो इम्तिहान था, अपने दिल पर वो बोझ रखते हुए कि ए हाजरा, मेरा दिल तो नहीं था तुम्हें छोड़ने का, अपने बेटे को अपने से जुदा करने का नहीं था, पर उस खुदा का इम्तिहान है, उस खुदा का हुक्म है, उस खुदा के हुक्म से ऐ हाजरा मैं तुझे और अपने लाल इस्माइल को यहां छोड़कर जा रहा हूं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करती है, इब्राहिम फिर परेशान होने की बात नहीं है, अगर उस खुदा के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं तो हम उस खुदा की रजा पर राजी हैं। वो खुदा हम पर मेहरबान है, वो खुदा हम पर रहम फरमाने वाला है, वो खुदा हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाने वाला है, वो खुदा हमारी जान की हिफाजत फरमाने वाला है, क्योंकि वही खुदा है जिसने पैदा किया है, वही खुदा है जिसने जो है वो मौत देनी है, वही खुदा है जिसने दोबारा मौत के बाद जिंदगी देनी है, वही खुदा है जो खिलाने वाला, वही खुदा है जो पिलाने वाला, वही खुदा है जिंदा रखने वाला, वही खुदा है मारने वाला। हम उस खुदा की रजा पर राजी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, काफी दिन दूरी होती है, बड़े दिन हो गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे को नहीं देखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा हजरत इब्राहिम को नहीं देखा। बाप बेटे की मोहब्बत भी आला, इनकी मोहब्बत की मिसाल कायनात में नहीं मिलती, क्योंकि बाप वो हस्ती है कि जो अपना सब कुछ अपनी औलाद पर कुर्बान कर देता है, हत्ता कि अपनी जवानी अपनी औलाद के मुस्तकबिल को बनाने के लिए कुर्बान कर देता है, अपना जिस्म अपनी औलाद को जो है वो उसका मुस्तकबिल बनाने पर कुर्बान कर देता है। न दिन देखता है, न रात देखता है, न तबीयत को देखता है, न सेहत को देखता है, बस ये कहता है कि मैं आज कुछ कमा लूं ताकि ये मेरा बेटा, ताकि ये मेरी बेटी, ताकि ये मेरे घर वाले कल जो है वो सुख का चैन जो है वो ले सकें। वो बाप है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ कर आए, अब मोहब्बत है, प्यार है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। वो इम्तिहान मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को सुरखरू फरमाया। इब्राहिम अपने बेटे को, बीवी को छोड़कर आ गए। साला साल गुजर गए, मुलाकात नहीं हुई, खबर नहीं ली गई कि मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, मेरी बीवी ठीक है कि नहीं। उस इम्तिहान से जब कामयाबी मिलती है, जब उस इम्तिहान से आप सुरखरू होते हैं, तो आप रात को क्या देखते हैं? रात को आप एक ख्वाब देखते हैं। वो ख्वाब क्या है कि एक अजीम चीज मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अब नया इम्तिहान शुरू हो रहा है। अब ख्वाब देखते हैं
क्या ख्वाब देखा? 8 ज़िलहज्जा को, 8 ज़िलहज्जा की रात को जब आप अपने बिस्तर पर आते हैं, बेटे की मोहब्बत भी दिल में है। बिस्तर पर सोते हुए वो बेटा याद आता है, जब वो बेटा जो है वो छाती पर खेला करता था। वो बेटा याद आता है जिसको अल्लाह की पाक बारगाह में दुआएं मांग मांग कर लिया था। वो बेटा याद आता है जो बाप के रुखसारों को चूमा करता था, जो बाप उस अपने बेटे अपने शहजादे इस्माइल के रुखसारों को चूमा करता था। अल्लाह अकबर, वो याद आती है और आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखों को बंद करते हैं। ख्वाब क्या देखते हैं? मैंने पहले भी बताया, हजरत इब्राहिम का तमाम नबियों का ख्वाब, वो ख्वाब आला व अफजल होता है, वो अल्लाह की तरफ से वही होता है। ख्वाब देखा कि मैं एक अजीम चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर रहा हूं। ख्वाब देखा, अगला दिन आया, उठे, सोचा कि शायद हो सकता है ये वसवसा हो, शायद हो सकता है ये ख्याल हो। इसको यौम तरविया कहते हैं, यानी कि सोचने का, समझने का। शायद हो सकता है ऐसा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब दूसरी रात फिर आराम करने के लिए आप लेटे। जैसे आप लेटे बिस्तर के ऊपर और वो बेटे की यादें, वो बेटे की मोहब्बत, वो बेटे का प्यार, वो बेटे के साथ उल्फत, वो बेटे का उन्स आपके दिल में जाग रहा है। अल्लाह का इम्तिहान था। मैं अपने बेटे को छोड़ आया। फरमाया फिर आप सोते हैं, फिर एक ख्वाब देखते हैं। उस ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैं एक अजीम चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया है, इब्राहिम मेरे से मोहब्बत करता है, मेरे से प्यार करता है, हमने तुझे अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है, जरा अपनी पसंदीदा चीज मैं खुदा की बारगाह में कुर्बान तो करना। 9 ज़ुल्हज्जा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ख्वाब ये देखते हैं और देखकर आप जब सुबह उठते हैं, इसको यौमुल अरफा कहते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको पहचानने का दिन कहा गया है। आप पहचानते हैं कि ये ख्वाब जो है वसवसा या शैतानी नहीं है, बल्कि ये ख्वाब तो रब्बुर रहमानी है। ये तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की पाक बारगाह में, ये तो अल्लाह की पाक बारगाह में अजीम चीज को जिससे जो है वो मोहब्बत करता हूं, कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है। आप फिर रात को सोते हैं, 10 ज़िलहज्जा की रात को, फिर आप ख्वाब में आपको हुक्म मिलता है, ऐ इब्राहिम अपनी मोहब्बत वाली चीज मैं खुदा की पाक बारगाह में कुर्बान करना। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अपने बेटे के पास जाते हैं। मोहब्बत देखें, पहला इम्तिहान अल्लाह की पाक बारगाह में 90 साल तक की उम्र तक मांगते रहे तो बेटा मिला, और जब वही बेटा उंगली पकड़कर चलने वाला हुआ तो हुक्म हुआ इसे रेगिस्तान में, इसे उस जगह पर छोड़ कर आओ जहां पर साया नहीं है, जहां पर खाने को पीने को अशिया नहीं है, जहां पर जिंदगी के वाले जो है वो लोग नहीं है, वहां छोड़ कर आए। अब कुछ साल गुजरे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आ इब्राहिम अब जरा अपने मोहब्बत वाली चीज मैं खुदा की बारगाह में कुर्बान करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते हैं, अपने बेटे इस्माइल के पास आते हैं और आकर सारा ख्वाब बयान करते हैं। क्या ख्वाब है? फरमाया फलम्मा बलगा माउसा यकाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। आप अपने बेटे को बुलाते हैं। अब बेटा बाप से मोहब्बत करता हुआ दौड़ता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गले लग गए होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे को गले से लगाकर सीने के साथ चिपटाकर फरमाया, ऐ मेरे बेटे मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। अर्ज की बाबा जान आप हुक्म तो फरमाइए, क्या आपको हुक्म मिला है?
کیونکہ ادھر جو حکم سنانے والا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، اور جو ہے وہ جو باپ وہ بھی اللہ کا نبی ہے، جو بیٹا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، اور باپ بھی بصیرت رکھنے والا ہے، اور بیٹا اسماعیل بھی بصیرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا باپ بیٹے کی محبت بے مثال، لیکن جب باپ نے یہ کہا تو بیٹے نے آگے سے عرض کیا بابا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ وہ خواب بیان کیا فلما بالغا معصا یقال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند، اے میرے بیٹے ذرا سننا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب دیکھ کر آیا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذرا بتا تو صحیح نا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آج کا بیٹا نہیں ہے، آج کا باپ نہیں ہے۔ باپ جس طرح اپنے بیٹے کی پرورش کر رہا ہے، بیٹا اسی طرح آگے باپ کا جو ہے وہ گربان پکڑ کر کھڑا ہے۔ اگر آج باپ جو ہے وہ حلال رزق کما کر، حلال رزق کھا کر اپنے بچے کو کھلا کر بڑا کرے گا، قرآن پڑھائے گا، حدیث پڑھائے گا، اللہ اور اپنے محبوب کا فرمان پڑھائے گا، تو وہ بیٹا باپ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا بلکہ باپ کے سامنے سر کو جھکا لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذرا بتا تیری رائے کیا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، یا اے بابا جان میں آپ کا بیٹا حاضر ہوں، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے مع الصابرین، میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ کے حکم سے صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اب بابا پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بیٹا ذبح کرنے کا، وہ بیٹا جس کی انگلی پکڑ کر چلنا تو نے سکھایا ہے، وہ بیٹا جسے خدا سے مانگ کر لیا ہے، آج اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس خدا کے حکم پر ذبح کرنا ہے، تو بابا میں حاضر ہوں، آپ کریے، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ آگے کیا فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبین کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پھر کیا فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آگے کا انشاءاللہ ہوگا کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔